Hi everyone. So today we are going to start a new session regarding the data science basically. Okay. And it is exclusively available on Skills for Everyone, powered by Network Kings. And I most welcome our new trainer, Mr. Hitesh. Hi Hitesh. Hello everyone. Yeah. So over to you, Hitesh. You can start. Okay. Yeah. I'll be making you the host. And yeah. So good evening everyone. Welcome to the data science training. Myself Hitesh and I'll be the trainer for the data science for the course. We'll be uh, learning about more about machine learning and data analysis and data visualization and other stuff as well. So I'll just share a presentation. Yeah. Can you guys see the screen? Yes, yes. Okay. Yeah. So coming to the introduction of myself Hitesh, I've done my master's from IIT Kanpur in the field of AI ML in speech and audio. Given the professional experience, I worked at Fraunhofer Germany, Samsung R&D, and Sony AI, where I worked mostly on AI ML applications for speech and audio processing. So mostly I work on home assistants like Alexa and Google, uh, Google and Siri and other stuff like that. Given the expertise, I'm well aware with AI ML algorithms for speech and finance. I also work on the financial data as well. Also the data analysis of the speech data or finance data as well, and similar other stuff as well like that. So outline for the today's presentation or today's lecture or trainer thing will be machine learning introduction. We'll go through some overview of what machine learning actually is. Then we'll see something about what is the future of the data science, some career guidance, and step to clear some certifications related to machine learning or data science and other stuff as well. या हितेश एक्चुअली ऑडियंस हिंदी भी रहेगी तो आप हिंदी में भी अच्छे से बता सकते हो मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक, चले ओके. सो अभी तक क्लियर है या कुछ डाउट अगर है तो बता दो, मतलब ऐसे किसी को. Well, yes, you're really clear. ठीक है. सो ओवर द कोर्स और ओवर द ट्रेनिंग विल कुछ बुक्स वगैरह होगी जो हम पढ़ सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्शन, बट अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं आगे भी जाके आफ्टर ट्रेनिंग तो हम कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं. सो सम ऑफ द बुक्स आर पैटर्न रिकॉग्निशन फॉर मशीन लर्निंग, ये बाय क्रिस्टोफर बिशप, D2L.ai like deep learning by Ian Goodfellow, and foundations of machine learning and all. सब कुछ एक बुक में से नहीं हो पाएगा. डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट वील हैव टू रीड लाइक दिस. स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशंस और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं है बुक से पढ़ो या ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह देख लो. wherever you guys are comfortable we can do that. Terminology and notations different book में different रहेंगे, but it will be you can say same only, like meaning will be same of over all the books like that. Reading materials if needed I can provide you with the PDFs and all if needed. Online भी मिल जाएगी, but अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, तो वो provide हो जाएगी वो material. Yeah. कोर्स का रियल गोल्स विल बी टू लर्न द फाउंडेशंस ऑफ द मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम्स. इसमें सब कुछ आ जाएगा. डेटा विजुअलाइजेशंस भी आ जाएगा, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ आ जाएगा. गिवन द मशीन लर्निंग एज द अम्ब्रेला ऑफ ऑल दिस थिंग्स. Focus on developing the ability to understand underlying principles behind ML models and algorithms. When to choose which algorithm. अभी बहुत सारी जगह पर ऐसा हो जाता है कि कुछ डेटा मिल जाता है, बट अभी हमें कहाँ पर कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो भी हमें पता चल जाएगा ओवर द कोर्स. ऐसा इसमें हम बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह में नहीं जाएंगे, जैसे बहुत डीप पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो में नहीं जाएंगे. ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कुछ
कोड के स्निपेट्स वगैरह की इसको हम कैसे कर सकते हैं। लाइब्रेरीज हम देख सकते हैं कब कहाँ कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअल यूसेज थोड़ा ओवरऑल देख लेंगे हम उसको कि कहाँ पर जो भी मेजर स्टफ है उसका हम देख लेंगे ऐसा। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग, इट विल बी जस्ट द इंट्रो, डोंट गेट ओवरवेल्म कि ये बहुत ज़्यादा हो गया नहीं समझ रहे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, हम इसको एकदम बेसिक से ओवर द कोर्स पूरा पढ़ेंगे ऐसा। हाय हितेश। या हितेश, कोई प्री रिक्विजिट भी रहेगा इसके लिए, या फिर कोई आप ग्रेजुएशन या फिर कुछ कंपल्शन है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल बेसिक सा अलजेब्रा वगैरह भी अगर आ जाता होगा तो भी ठीक है, बेसिक अलजेब्रा वैसे। ओके। सो बेसिकली मशीन लर्निंग में क्या कैसे होता है कि हम उसे डेटा दिखाते हैं, वो डेटा को लर्न करता है, एंड देन यूजिंग दैट लर्न पैटर्न्स एंड वगैरह वो आगे की चीज़ प्रेडिक्ट करता है या वो डिटेक्ट करता है बेसिकली वो डेटा के अराउंड ऐसे। वो रूल्स अपने आप लर्न कर लेगा बेसिकली, जो भी डेटा में रूल्स रहेंगे, जैसे कि पूरे टेक्स्ट में अगर उसे लग रहा है कि मुझे हमेशा फुल स्टॉप के बाद एक कैपिटल लेटर ही लिखना है, तो ये पैटर्न ओवर द टाइम जब डेटा देखते जाएगा तो उसको ये लर्न कर लेगा ये रूल। हमें रूल स्पेसिफिकली लिखना नहीं है ये कहीं पर भी, उसे बस डेटा दिखा दो मॉडल को, एक ब्लैक बॉक्स समझ लो, ब्लैक बॉक्स को आप दिखा दो एंड वो लर्न कर लेगा अपने आप ऐसे। सो व्हाट डज एमएल डज, सो मशीन लर्निंग के दो मेजर चीज़ है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है उसे। समझ लो कि एक पूरा सर्कल है हमारे पास, एक स्पेस है सर्कल, उसको अभी हमें कितने 4 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, अनलिमिटेड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। सिमिलरली मशीन लर्निंग भी वही करता है, वो एक स्पेस होता है उसको वो मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करता है, हर स्पेस एक पर्टिकुलर पैटर्न को डिफाइन करता है उसका, समथिंग लाइक दैट। और वो स्पेस कैसे लर्न करते हैं कि ये स्पेस में ऐसा डेटा रहेगा, ट्रेनिंग डेटा से हम उसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं जिससे वो ये ट्रेन करेगा कि अच्छा ये स्पेस में मुझे ये डेटा रखना है, और फिर वो एक मॉडल बनाएगा ओवर द टाइम, फिर हम वो मॉडल को यूज कर सकते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए ऐसे। डोंट वरी, हम इसको एकदम बेसिक से देखेंगे वापस जब स्टार्ट, हम इसको जब करेंगे तब ऐसे स्टार्ट। सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे ये डॉग और कैट का क्लासिफिकेशन है 2 स्पेस में, तो ये एक स्पेस समझ लो, ये एक स्पेस है जिसको उसने 2 में डिवाइड कर दिया कि एक जगह पर कैट आएगा, एक जगह पर डॉग आएगा। तो आगे जाके कभी भी हम इसको एक इमेज देंगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा पैटर्न कौन सा सिमिलर आ रहा है, कैट का पैटर्न आ रहा है कि डॉग का पैटर्न आ रहा है, तो जहाँ पर भी पैटर्न आएगा वहाँ पर उसको क्लासीफाई कर देगा फिर वो वैसे। अभी एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर, बेसिकली वो क्या करेगा कि गिवन द इमेज वो कैट है कि डॉग या वगैरह वो प्रेडिक्ट करेगा ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा कि अच्छा कैट्स आर ऑलमोस्ट ऑल कैट्स का बेसिकली समझ लो कि उसका टेल स्ट्रेट है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा कि अच्छा कैट के टेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और डॉग के टेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस हिसाब से वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और फिर जब भी इमेज आएगा तो उसका वो टेल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और फिर उसको वो क्लासीफाई करेंगे वैसे। एंड व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंग, इट इज समथिंग लाइक अनलिमिटेड एप्लीकेशंस, लाइक यू कैन से इन स्पैम है कि नहीं ईमेल वगैरह चेक करने के लिए, फिर जैसे मैं स्पीच में काम करता हूँ वैसे सिमिलरली वो वॉइस रिकॉग्निशन जो हमारे आजकल स्मार्ट टीवीज में और फ़ोन वगैरह में आ गया है, वो हो गया, ड्रोन है हो गया, कैमरा एप्लीकेशंस होंगे, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस जो भी चलते हैं हमारे वो सब में हो गया, फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हमारा वो होता है, डॉक्टर्स के उसमें यूज़ होता है, फिर प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग एज इन ट्रेडिंग वगैरह में यूज़ होता है हमारा, फिर प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग मतलब
पेट्रोलिंग वगैरह जहाँ चलता है वहाँ पर लगा सकते हैं वो कैमरा, और फिर उससे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसने सिग्नल तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, या क्या रूल्स ब्रेक किया उसने। फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग से ओवर द टाइम। सो यहाँ तक किसी को डाउट है, मतलब ये एकदम बेसिक सा मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो अभी तक तो पूछ सकता है। क्लियर है। ओके, सो अगर हम फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस देखेंगे ओवर द कि हम डेटा साइंस का फ्यूचर कहाँ आके क्या हो सकता है, सो ऑटोमेशन सिस्टम्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं डेटा साइंस प्रोसेसेस के लिए। फिर एथिकल एआई, मतलब आजकल एआई मॉडल तो बना लेते हैं बट फिर ऐसे हो जाता है कि उसको भी लोग हैक कर सकते हैं या उसको भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर लिया है लोगों ने। तो उसको बचाने के लिए भी हमें डेटा साइंस का यूज़ हो सकता है कि मॉडल तो बन गया, अभी उसको बचा कैसे सकते हैं हम मॉडल को। फिर रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स या डिसीजन मेकिंग करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट वगैरह में देखा होगा तो लोग लैपटॉप्स वगैरह लेके बैठते हैं, तो वो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ऐसे चलता है कि अच्छा ये बॉलर का ऐसे हो रहा है तो हमारे बैट्समैन फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे तो उनको स्पिन बॉलर्स को भेजो ऐसे, क्योंकि तो ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो गया। या फिर स्टॉक मार्केट में कि हमारा प्रेडिक्शन वगैरह डेटा साइंस से स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन कर लिया, अभी हमें कम ज़्यादा करना है उसको या स्टॉक खरीदना बेचना है, तो रियल टाइम डेटा साइंस से वो भी कर सकते हैं आप। टेक्निकल एंड डोमेन एक्सपर्ट्स में फॉर एग्जांपल अभी मैं एआईएमएल का एक्सपर्ट हूँ बट अभी कोई दूसरे डोमेन का एक्सपर्ट है, बट अगर हम दोनों को कोलैब करना है तो हम यूजिंग डेटा साइंस कोलैब कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है अभी कि दो डिफरेंट फील्ड के लोग यूजिंग डेटा साइंस उसको ऑटोमेट कर रहे हैं या उसको ट्राई कर रहे हैं ऑटोमेट करने का, तो ऐसे कोलैबोरेशन भी बहुत इंक्रीज होने लग गए। सिंप्लीफिकेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा साइंस टूल्स वगैरह, कि अगर कोई टूल बनाया है तो उसको और कितना सिंपल कर सकते हैं, वहाँ पर डेटा साइंस और यूज हो सकता है। गिवन करियर गाइडेंस के हम डेटा साइंस फॉर एग्जांपल हमने सीख लिया अभी, हाउ आई एम एबल टू डू वेरी बेसिक्स और एडवांस थिंग्स इन डेटा साइंस, तो अभी मैं कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं या मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। सो हम हेल्थ केयर वगैरह में काम कर सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, पर्सनलाइज मेडिसिन हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, या एल्गोरिथम लगा के कुछ ट्रेडिंग कर लिया, या समझो कि आप एक्सरे की इमेजेस अच्छे से डॉक्टर्स को बहुत डिटेल्स चाहिए या पेशेंट को डिटेल्स चाहिए बेसिक डिटेल्स, तो वैसा भी कर सकते हैं डेटा साइंस में। ई कॉमर्स वगैरह हो गया, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स होंगे, जैसे आप आज इंस्टाग्राम पे वॉच सर्च करते हो तो आपको अमेजोन पे भी वॉच ही दिखाता है आपको। ये सारा मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की वजह से हो गया। एजुकेशन में आने लग गया, जैसे कोडिंग वगैरह लोग करने लग गए। फिर अभी समझ लो कि मेरा 100 लोगों का क्लास है डेटा साइंस के, या 10,000 लोगों का क्लास है फॉर एग्जांपल, तो मैं ड्रॉप आउट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा इसका ओवर द ईयर ऐसा परफॉर्मेंस था तो अभी ये आगे पास होगा कि फेल होगा, वो सब भी मैं देख सकता हूँ। वैसे करिकुलम को ऑप्टिमाइज करना है मुझे तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे टाइम टेबल बनाना है इज़ वेरी हेक्टिक इन अ वेरी एवरी कॉलेज, तो डेटा साइंस का एक टूल बना दो कि अच्छा मुझे ये लेक्चर्स लगाने ऐसा ऐसा टाइम है, मेरा अपने आप वो टूल बना के दे सकता है ऐसे। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आजकल ऊबर, गूगल मैप्स वगैरह डेटा साइंस या एआईएमएल यूज़ करके ही हमें गूगल मैप्स बताता है या रूट ऑप्टिमाइज करता है। ऊबर वगैरह तुम्हारा ड्राइवर जो है असाइन होता है उसमें वगैरह ऐसे। ऑटोनोमस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे मैंने बताया वो भी हो सकता है। तो ये सब हमारा एक मशीन लर्निंग का चीज़ है। और एक से हाँ, सो करियर गाइडेंस हमने देख लिया। अभी स्टेप अभी ऐसा हो जाता है कि हमने एक स्किल तो सीख लिया अभी, बट समवेयर आई नीड अ सर्टिफिकेशन। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आई नीड अ सर्टिफिकेशन सो दैट आई कैन शो माई स्किल्स एंड वगैरह। मैं ऐसे ही ओरली नहीं बता पाऊंगा, तो लेट्स लर्न हाउ टू क्लियर अ सर्टिफिकेशन। सो काफ़ी सारे कोर्स एरा के सर्टिफिकेट्स होते हैं, फिर नॉर्मल यूडेमी की सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो सारा क्लियर करने के लिए यू नीड टू लर्न बेसिक मैथमेटिक्स, सम बेसिक कोडिंग वगैरह सीखना होगा पाइथन का,
एंड बेसिक एल्जेब्रा सीखना हो. इंट्यूशन, यू नीड सम इंट्यूशन कि अभी फॉर एग्जांपल कि मेरा एक ईमेल को क्लासिफाई करना है, स्पैम है कि नहीं है, ईमेल को समझना है कि तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा. ये इंट्यूशन कैसे आएगा? जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, या जितना आपस में लोगों के साथ डिस्कस करोगे, तो उतना बढ़ते जाएगा. मीडियम के ब्लॉग्स देखो, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे. फिर विद्या एनालिटिक्स करके उसके भी ब्लॉग्स देखो, उसमें भी सारे कोड स्निपेट्स और वो सारा मिल जाएगा. तो ऐसे पढ़ पढ़ के तुम ओवर द टाइम कर सकते हो उसे ऐसे. सो ये एक सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. डिफाइंड स्टेप्स नहीं हो सकते, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ कि हमें क्या करना है, क्या लेवल का सर्टिफिकेशन है. अगर आप डेटा साइंस कोडिंग के हो तो यू नीड टू बी गुड विथ पाइथन कोडिंग ऐसे, या तुम पाइथन कोडिंग लर्न कर लो वैसे सर्टिफिकेशन में अच्छे से, टाइम दो उसे, एंड यू कैन लर्न पाइथन कोडिंग इजीली फॉर डेटा साइंस. और इफ़ यू वांट टू लर्न क्लासिकल, तो क्लासिकल मशीन लर्निंग और क्लासिकल डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स, देन यू नीड टू बी गुड विथ मैथमेटिक्स कि तुम इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर पा रहे हो, डेरिवेटिव्स निकाल पा रहे हो. सो बेसिक, इसमें भी कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक डेरिवेशंस आने चाहिए जो 11th-12th में हमें पढ़ा था. अगर उतना भी आ जाएगा तो भी सर्टिफिकेशंस क्लियर हो जाते हैं, कोई भी हो जाए फिर वो आंसर. सो दिस आर सम ऑफ द टिप्स टू क्लियर द सर्टिफिकेशन. बाकी कुछ ऐसे रहेगा तो ओवर द कोर्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये जहाँ डिफिकल्टी आ रही, तो आई कैन guide you guys with those things like that. So this was today's outline of the presentation or today's presentation for you all. So कुछ doubts वगैरह रहेंगे इसमें तो पूछ सकते हैं ऐसे. किसी को कुछ डाउट्स वगैरह, ये बुक्स है, किसी को फोटो वगैरह लेना है तो ले सकते हैं. काफी अच्छा और मतलब इंटरेक्टिव सेशन लगा मुझे, मतलब काफी डिटेल्स आपने सब प्रोवाइड करी तेज. और बाकी अगर हमारी एनरोलमेंट्स और स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्टली हम आगे कन्वे करेंगे. और ठीक है. इसके साथ साथ क्या है, एक और डेमो सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है. चलेगा. और उसके बाद जो है सेशंस होंगे लगातार, तो आप और भी चीज़ें देख सकते हैं. हितेश ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इस सेशन में, ठीक है, रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड ऑल थिंग्स. तो जो हमारे पास है, मतलब आप ये सोच लिए ये वर्क इन प्रोफेशनल है, ठीक है, ही इज़ राइट नाउ वर्किंग एंड इवन ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस. तो आपको आगे और कंपनीज में भी कैसे जाना है, उसमें भी इनमें इनको ये गाइड कर पाएंगे, उसमें भी ये अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. या सर, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन प्लीज. एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था, जैसे लाइक नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से अगर कोई हो, राइट, हाँ. तो वो डाटा साइंस में जा सकता है? देखो जा सकते हैं, बट बेसिक तो तुम्हें करना पड़ेगा. पाइथन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जैसे हम रेगुलरली बोलते हैं वैसी ही चीज़ें उसमें कोडिंग करनी होगी. तो थोड़ा तो कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बिना कोडिंग का कोई करेगा नहीं. मतलब देखो, एक्सेल पे भी तुम डेटा साइंस कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट एक्सेल के भी तो तुम्हें उसमें फंक्शंस लिखने पड़ेंगे जो भी तुम्हें करना है. वैसे वी लुकअप वगैरह अच्छे से करने को होना चाहिए वगैरह ऐसे. तो वो भी करने के लिए कुछ तो बेसिक कोडिंग माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे कि मैं कुछ एक दिया है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, एक लाइन में कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को. ओके ओके, मतलब कोडिंग आनी चाहिए. हाँ, बेसिक कोडिंग आनी चाहिए इसमें. दैट इज व्हाट आई पाइथन या पाइथन, पाइथन और आर. इस only पाइथन, सिर्फ पाइथन भी करोगे तो भी इनफ है ऐसे. ओके ओके, और एक सिक्वल भी है शायद, मे भी इसमें मैं वीडियो देख रहा हाँ, था. एसक्यूएल वो भी भी आता जरूरी है. होता है? डेटा मैनेजमेंट के लिए होता है एसक्यूएल. वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग Okay. वगैरह में यूज़ नहीं होता है. वो मशीन लर्निंग का डेटा जो रहता है उसके लिए. बट अभी एसक्यूएल के बदले भी आप पाइथन का पांडास लाइब्रेरी है, वो अगर सीख लिया तो वो भी सेम ही है ऐसे. ओके ओके, ऑल्सो सेम एज एसक्यूएल ओनली. ठीक है ठीक है ठीक है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग यार. हेलो या सर, आपने अभी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे.
आप हाँ, हाँ। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और क्योंकि रिग्रेशन जो हमने पढ़ा है वो एक इंडिपेंडेंट का मॉड्यूल का रिलेशनशिप बताता है, राइट? तो उसमें कैसे डिफरेंस पता लगेगा, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? एक सेकेंड ना। चला गया। क्या डाउट पूछ सकते हो क्या? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया वो? यस सर, उनमें जैसे आप कह रहे थे डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करना, तो ब्लॉग्स पढ़ के थोड़ा पता लगेगा। बट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो थोड़ा सा सिमिलैरिटीज ही रहती है। तो थोड़ा सा क्लियर करोगे आप, लाइक कैसे डाउट्स और कैसे हम डिफरेंस ज़्यादा पता कर सकते हैं? अच्छा, समझो, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे सेम नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है कि अ, कौन सी कार ने सिग्नल तोड़ा, ठीक है? ओके। फॉर एग्जांपल, एक सिग्नल पे कौन सी कार ने सिग्नल तोड़ा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्लासिफिकेशन लगेगा कि जो भी कार आगे आएगी उसने सिग्नल तोड़ा, जो भी कार पीछे थे उसने सिग्नल नहीं तोड़ा, ठीक है? यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रखोगे तुम कि इसके आगे कार आ गई तो इसने सिग्नल तोड़ा, इसके पीछे कार थी तो सिग्नल नहीं तोड़ा उसने। बट अभी तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है कि ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। बट अगर तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है कि शाम के 5 बजे कितनी कार्स मेरी रोज कितनी कार्स मेरी सिग्नल तोड़ती है ऑन एन एवरेज, तो इसमें फिर तुम्हें रिग्रेशन लगेगा। इसमें तुम ये लगाओगे कि रोज 5 बजे मेरी 10 कार, डेटा सेट में तुम्हारे पास ऐसी रहेगी कि 4 बजे 10 कार हो रही है, 5 बजे 11 हो रही है, 6 बजे 15 कार सिग्नल तोड़ रही है, तो मेरे 5:30 बजे फिर कितनी कार तोड़ रही है, ये प्रेडिक्ट करने के लिए फिर तुम्हें रिग्रेशन लगेगा यहाँ पर। ओके, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को जज करके उसके ऊपर डिसाइड करा, दैट इज रिग्रेशन। हाँ, जैसे हाउस के प्राइसेस हो गए या स्टॉक प्राइसेस हो गए, ये सब में रिग्रेशन लगेगा, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं लगेगा कभी। थैंक यू सर, थैंक यू। Any other doubt, guys? किसी और को कोई डाउट हो? नो नो, ऑल क्लियर। Okay, Hitesh. Thank you so much, and thanks everyone for the session.